process and making my dream come true. Hello everyone. I hope you all are doing well and great. Am I audible to all of you? Can anyone give any reaction? Okay, perfect. First of all, thank you for joining this session. So let me give you a brief idea about this session, like what will be happening here and why you are invited in this session. If you have joined it with your parents, it is great. They will also get all the information. But if still you haven't joined, no, like your parents haven't joined, you can ask them if they are at workplace, office. If they have 40 minutes for your career, they can also join so they can get complete understanding. Okay, so what we will discuss in this session, firstly we will discuss about South Korea as a country, like how South Korea is, how is their environment, how is their education, their universities, all those things we will be discussing. And the second stage we will be discussing about the stand you, how stand you is working, what is our journey, what is our background, how trustable stand you is, all the certificates, all the media articles, we will be going through that. And at last we will be having a Q&A session. So obviously in between the session you guys will be having the queries. आपके जितने भी doubts होते हैं, आपकी जितनी भी queries होती है, आप meanwhile chat box में लिख सकते हैं. So at the end I will address all your queries. ठीक है? So now let me also share my screen. I, yeah, I guess my screen is visible to all of you. Okay, perfect. Yeah, guys. So let's just start the session. Before starting from my end, I would like to understand your opinion that why you guys want to go South Korea. Is there anyone who can let me know his choice or her choice that why he or she is planning for South Korea? You are open to unmute, guys. So just a brief introduction from your side about South Korea. If anyone is interested. Meanwhile, okay. Great. So, what will be happening in South Korea, guys? In South Korea, there are lots of scholarship options. So, great. You guys will be getting scholarship options. Then, okay. So, we have few points why we should study in South Korea. First is that there is high quality education. If we talk about the high quality education, then we think about the USA, then we think about the UK and other countries. But right now, in last 4 to 5 years, South Korea is also having a great QS ranking, universities, and great education. They have enhanced very much their profile, their whole education system. They have designed their education system in English track also, ताकि आप लोग जो भी जा रहे हैं आप अपने लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं. तो they have prestigious universities. Okay, and second, affordable tuition fees. अगर अपन ट्यूशन फीस की बात करते हैं फॉर द अब्रॉड स्टडीज, इट विल बी लाइक जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि ओके अपने को 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपीज चाहिए होंगे. बट नो, इन साउथ कोरिया यू have a tuition fees very pocket friendly, that is just between 2 to 4 lakh rupees a semester, or in few universities it go 4 to 5 lakh rupees a semester. So yeah, it will be very much affordable, and on that particular tuition fees you guys will be getting a good scholarship. ओके, देन लो कॉस्ट ऑन कैंपस लिविंग. आपको अकोमोडेशन के लिए, आपकी फूडिंग के लिए आपको 50-60 हजार 80 हजार का बजट नहीं चाहिए. जस्ट विद इन ए रेंज ऑफ 10 to 20 और एटलीस्ट 10 to 15 के में आपको अपनी सारी बेसिक कम्युनिटीज, सारी बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाएगी. योर अकोमोडेशन, योर फूडिंग, ऑल दोज थिंग्स कैन बी डन हियर in this much budget in South Korea. Then your complete classes will be in 100% English taught program. Whether you are going for the MBA, whether you guys are going for the MTech, for the BTech, for the BBA, for some kind of international relation courses, for the medical, biotechnology, biomedical, life science, public health, किसी भी courses के अंदर अगर आप जाते हैं, it will be completely in the English track. So you guys do not have to worry about learning the Korean language right now. By your choice, if in future you guys want to understand the Korean language, you want to learn their Korean language, it's fine. You can doing to the same university campus. But as of now, for the admission process, you just need to go with the IELTS examination, and then with 100% English short program, you guys can go into the top university. Okay, guys. Then there is very high earning potential. If you guys talk about the ROI,
Like, will you guys will be getting a good job options there, or the money you are investing, will you guys will be getting a good return? Yes, guys. Now earning potential is 10 times higher. If in India, for a good position, for a manager level of position, if the salary is around 50 to 60K, in South Korea it is 5 lakh to 6 lakh rupees. So at least you will be getting a 10x more earning potential than comparison to India. Okay, and in part-time job also, you guys will be having good job options. Up, you can work as an accountant if you are from the commerce field. If you are from the business field, you can work in new startup into the operation. Many things, many benefits you guys will be getting. Okay, then we South Korea have a strong economy and higher per capita income. So guys, किसी भी कंट्री की वैल्यू डिसाइड होती है उसकी वर्ल्ड लेवल पे उसके रैंकिंग्स वगैरह ये सब डिसाइड होती है उसकी इकोनॉमी से. साउथ कोरिया की इकोनॉमी अभी बहुत स्ट्रांग है. एंड आफ्टर द कोविड दे इनहेंस्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स. कोविड के बाद में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी करा है. उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को काफ़ी बूस्ट करा है. उन्होंने अपने मेडिकल सिस्टम को काफ़ी बूस्ट करा है. तो राइट नाउ दे आर हैविंग अ वेरी गुड economy, and their per capita income is around 38,000 USD, which means between 35 to 40 lakh rupees वहाँ पर हर आदमी की per capita income रहती है साल की income, which is in India around 1.75 lakh rupees annually. So आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितने बेटर आपको अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर मिलने वाली है. ओके गाइस, एंड देन डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस. एज आई ऑलरेडी मेंशन यू, आपको ना तो कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देना है तो कोरियन लैंग्वेज के लिए, ना फिर आपको सेट देना है, जीआरई, जीमेट. जस्ट विद द IELTS एग्जामिनेशन एंड विद द बेसिक यूनिवर्सिटी इंटरव्यू विच इज रिक्वायर्ड इन फ्यू कोर्सेज ओनली, यू कैन इजीली गो साउथ कोरिया. आपको और किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई भी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, and you guys can easily go South Korea for the further study. Okay, so then there is the next few points. Part-time job options. Obviously guys, हमारे जो भी students, if you will be going there, obviously in initially 3 months you will not be allowed to do the part-time job, but after you get the ARC from third, fourth, fifth month for your complete course, you can do the part-time job. You will be allowed to do job for 20 hours a week, and there is no limit on the weekend. So आप easily 70-80,000 rupees per month आप earn कर पाओगे. You guys will be getting a good post-study working visa. Yes, right now South Korea is offering post-study working visa. So आपको 2 साल का post-study work permit मिल जाएगा, जिसकी वजह से you will be allowed to gain professional experience and apply for better paying roles. आप अभी अगर currently with your MBA, with your BTech, with your BBA, if you guys will be doing a part-time job, once you get your degree, you can do that in the full time itself in the same company. Also, the guys will be hiring you. Okay, South Korea is right now very safe and modern country. Okay, so right now there is a ratio from our side also. Ki, in this webinar also you can check that almost 80% students are girls here. राइट. तो राइट नाउ इंडिया की बहुत सारी गर्ल्स साउथ कोरिया जाना चाहते हैं. उसका स्पेसिफिक रीजन है क्योंकि इट इज़ अ वेरी पीस लविंग कंट्री. बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं वो इंडियंस को. एंड ऑल्सो दे they have a very safe environment there. आप चाहे रात को किसी भी वजह से आप you are outside there, या फिर you are into the your university library, you can sit alone, you can study there. You will not have to worry about anything. You guys will be feeling very safe there. And if we talk about the crime rate, it is just 0.3% right now in South Korea. After that, you will be able to get the PR. Okay, guys, why you guys can get the PR? Because right now the with the stable employment, their average age is just 47. You can understand, guys. Okay guys, I would like to ask from all of you, from which state you guys have joined. Can you write in the chat box? I would like to tell you one very important thing. Let's we do an activity, guys. Okay, Vaishnavi is from Bihar, Tamil Nadu, Ayodhya, UP, Maharashtra, Uttarakhand, Maharashtra, Lucknow, Delhi, Rajasthan, Delhi, Gujarat. Perfect, guys. So, guys, can anyone let me know? Okay, there is 1 minute. There is Durva. Durva, can you let me know what is Maharashtra population, if you know, if you have any idea about it? No, I'm not sure. Okay, anyone is able to recognize or guess their state population? Shalini, do you know population of Bihar? Let's we search then. Okay, let's we first do Maharashtra.
population 2026, it's around 13 crore. Obviously it is 13 crore. Then let's we check about Rajasthan. इट्स अराउंड 8 to 8.5 करोड़ वी कैन से, मतलब 8 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पे पॉपुलेशन है। चलो अपन एक और कंट्री की स्टेट की देख लेते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भी 9 CR है। लेट्स वी चेक फॉर द उत्तर प्रदेश ऑल्सो 25। लेट्स वी ऑल्सो चेक फॉर द J&K, जम्मू कश्मीर। It's around 1.5 CR. Okay, you understand why the reason. Then let's also check for the Punjab. It's 3 crore. So guys, you can understand that आप किसी भी स्टेट का अगर चेक करोगे, आप किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन अगर अभी आप देखोगे तो इट विल बी मोर देन 5 CR। अगर आप एवरेज लोगे कुछ स्टेट्स को छोड़ के, so obviously it will be more than 5 CR. So आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट हाँ, like I forgot to tell you one thing. Anyone know about the South Korean population? साउथ कोरिया की अभी करंटली कितनी पॉपुलेशन होगी? Any rough guess? Okay, 5 CR, around 50 million. Let's check this. Okay, it's 51.6 million, means around 5 to 5 CR population is there. So guys, you can understand जितनी population आपने किसी भी स्टेट की यहाँ पे राजस्थान में, MP में, यूपी में है, इवन अगर अपन ने चेक करी थी अभी किसी स्टेट की थी, इट वाज 12 CR, तो उससे भी आधी population है वहां पर साउथ कोरिया में। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कितनी कम पॉपुलेशन वहां पर है। यही एक रीजन है कि वो वहां पे PR भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी रीजन की वजह से वो वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी बुला रहे हैं, और इसी रीजन की वजह से वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री में लोग आए, वहां पर पढ़ाई करें। सो गाइस, दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, एंड इट्स नॉट फ्रॉम माय साइड। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, साउथ कोरिया खुद चाहता है कि आप लोग वहां पे आए। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? यू कैन जस्ट चेक साउथ कोरिया 5-year plan for South Korea 5-year plan for the international students. So guys, are you aware about this project? South Korea is currently offering a project, Study Korea 300K. Is a 5-year strategy launched by the Ministry of Education. साउथ कोरिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट? टू अट्रैक्ट 3 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाय 2027 टू काउंटर एक्ट एन एजिंग पॉपुलेशन एंड एनरोलमेंट शॉर्टेज। ये प्रोजेक्ट उन्हीं की तरफ से, आपको इसके बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इट वाज लॉन्च्ड इन 2023 में उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च करा था कि आप लोग हमारे यहाँ पर आए। उनको 2027 तक 3 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का उनका टारगेट है to go in their country. Why they are needing this? To counteract an aging population and enrollment shortage. वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करने के लिए लोग बहुत कम हैं, एंड वहाँ पे एजिंग का जो इशू है 47-48 के जो लोग हैं, इसी वजह से राइट नाउ साउथ कोरिया इज ऑफरिंग दैट मच थिंग। किस किस कोर्सेज के लिए आपको मिल जाएंगे बेटर ऑप्शंस? रीजनल स्ट्रीम्स के लिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए आपको वहाँ पे इजियर वीजा मिल जा रहा है अभी साउथ कोरिया में। देयर आर मेनी ऑप्शंस व्हिच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। सो गाइस, इट्स नॉट लाइक द अदर कंट्रीज, इट्स नॉट लाइक द यूएसए, यूके एंड अदर कंट्रीज कि आपको कंपटीशन फेस करना रहेगा या फिर आपको यू विल हैव टू फाइट अ लॉट। नो, प्रोसेस इज वेरी इजी, visa requirement is very simple, you guys can easily go. And yes guys, South Korean degree will be globally recognized, so Korean degrees are internationally recognized with the innovation, with the research, with the practical learning they have. If you go with the South Korean degree anywhere in the world, you will be getting a good job opportunities in global campus. Guys, you can really work in the Samsung, Hyundai, LG, Kia, SK, Poscom, many leading startup firms, many IT companies belongs to there. So guys, this was my points to discuss about South Korea. I hope अगर आपके parents यहाँ पर हैं तो they got a clarity, they know okay South Korea is better on these particular points. If I missed anything, or if anyone want to add up anything, you guys can add this. You have like time of 30 seconds or more.
कोई और कुछ डिस्कस करना चाहता है साउथ कोरिया के बारे में, अपनी तरफ से कोई पॉइंट्स रखना चाहता है, और व्हाट इज योर थॉट अबाउट दिस, यू कैन लेट मी नो एंड देन वी विल मूव विद द नेक्स्ट सेक्शन. Okay, someone mentioned here about the GKS scholarship. We will be coming on that point again. Someone mentioned that what about banking and finance sector? Those are very less in South Korea. So for that particular point, I would like to explain you that banking and finance sector cannot be lesser if you are having a very good economy, right? अगर आपकी economy is on words 11th और 12th number, तो आपका banking and finance sector कम नहीं हो सकता है. दूसरी चीज, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर आपका वहां पे कम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि देयर आर बिग ब्रांड्स. जहां पर इतनी बड़े जाइंट्स हैं, वहां जहां पर इतने बड़े जाइंट्स है, सैमसंग है, एलजी है, हिटाची है, Hyundai है, सो ऑब्वियसली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मनी का रोटेशन कितना हो रहा होगा उनके मार्केट में, कितना ज्यादा पैसा मार्केट में घूम रहा होगा, राइट? तो फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर तो कहीं भी कम नहीं हो सकता है. एमबीए स्टूडेंट्स बहुत सारे वहां पर है, ग्लोबल एमबीए स्टूडेंट्स इन फाइनेंस पर्टिकुलरली इन अकाउंटिंग बहुत सारे हैं. तो जिस कंट्री में इतने बड़े ब्रांड्स हो, अगर अपन और किसी कंट्री की बात करें, सपोज देयर इज ए कंट्री कजाकिस्तान. कजाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी है नहीं, उज्बेकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी नहीं है, तो हो सकता है वहां पर फाइनेंस इतना लो हो. लेकिन जहां पर बड़े ब्रांड्स हैं, वहां पर फाइनेंस कभी भी लो नहीं हो सकता. उस सेक्टर में हमेशा आपको गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ही मिलेगी. Okay, someone is asking what documents we need for applying. We will discuss about that. GKS scholarship, guys, we will be coming on that point. What about the local language requirement to get a part-time job? Suryansh, you do not need that much language proficiency to get the part-time job क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग से we already have Indian students who is doing their job in their market itself. But it will be better if you go there, you choose a basic Korean language course for 6 months, grab some basic understanding about the language, and then you can easily work in the job market. Okay, guys. So then we have next point about the GKS scholarship. You guys know about the GKS scholarship? Can anyone explain me about the GKS scholarship? अगर किसी ने properly research करी हो GKS के बारे में, so you guys can unmute and you can let me know. What is your research about that? Guys, you can speak up. कोई भी फाउंडेशन नहीं है, नो वन गोइंग टू जज यू. आप अपना ओपिनियन रख सकते हो. फॉर दिस 40-50 मिनट, द नेक्स्ट 40 मिनट्स हम सब एक दूसरे की हेल्प ही करने वाले हैं विद द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. यस. हेलो सर, मैंने जितनी रिसर्च करी है जीके स्कॉलरशिप के बारे में, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है ये साउथ कोरिया की, जो पूरी तरह से मतलब रहने खाने और वहाँ का सारा खर्चा वो गवर्नमेंट वहाँ की उठाती है स्कॉलरशिप से. ओके, तो उसके लिए एलिजिबल होने के लिए व्हाट वी नीड टू डू? सर, एलिजिबल होने के लिए मतलब आपको जो फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन ही, मतलब आपको निकलवा के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करके आपको मतलब दिल्ली में मे बी कोरियन कोई सेक्टर है, तो वहाँ पे आपको मतलब भिजवाना होता है अपना फॉर्म, या फिर आप कोरिया के किसी कॉलेज में भी आप अपना फॉर्म फिल करके और सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करके भेज सकते हो. तो वहाँ से मतलब. एंड व्हाट इज अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे वर्क करता है जीकेएस का, इफ यू नो अबाउट दैट, कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, इस बात पे क्या मतलब गारंटी रहती है, इफ यू हैव रिसर्च अबाउट इट? एक तो चीज़ होती है कि आपकी 80% आपकी होनी चाहिए. So you will be getting selected? No, sir. English, maybe English language is most important, and Korean language. So see, let me make it clear for you. Thank you, Sakshi, for your words. Yeah. So let me make it more clear for you guys. GKS scholarship have a minimum eligibility criteria of 80%. But 80% criteria is not for the selection, guys. This is just for the form filling. If you have more than 80%, anyone who is having more than 81%, you guys can fill the form. But it doesn't mean that okay, you guys are selected, right? So selection के लिए अपने को क्या करना रहेगा? For the selection, we need to have just a minute. Yeah. So for the selection, आपका
आप कुछ नहीं कर सकते आपको सिलेक्शन के लिए। जो भी करना होगा वो कोरियन यूनिवर्सिटीज, कोरियन एम्बेसी करेगी। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ वेरी लिमिटेड सीट्स। जीकेएस स्कॉलरशिप अंडर द ग्रेजुएट कोटा 2025 फॉर इंडिया वाज ओनली वन इन 2025 की अगर मैं बात करूं, एंड इट वाज 69 फॉर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए देयर वर ओनली 69 सीट्स। तो वो 69 लकी स्टूडेंट्स कौन होंगे, इसका आइडिया सिर्फ वहाँ की एम्बेसी, वहाँ की यूनिवर्सिटीज जिस भी ट्रैक से आपने अप्लाई करा है वही डिसाइड कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव एनी थिंग टू डू इन योर हैंड। यू कैन जस्ट प्रिपेयर वेल, you can do a better documentation, but there is no particular criteria. So how stand you help you with? Yeah, surely we help you with the GCAS scholarship, but what about the student who is having 65 percentage, who is having 69, who is having 70, 75, 50 also, 52 also? What about those students? For those students also, and students with more than 80, 90% also, we help you with 50 plus scholarship. Guys, do you know any other scholarship than GCAS? Sir, GCAS means sir, what type of documents are required for the scholarship then? there are 20 types of documents which is required. I will explain you that. Okay, so what will be happening now, guys? We do not want our students who is really dreaming to go South Korea not only to be dependent on the GKS scholarship, because we know there are Samsung scholarship, we know there are corporate scholarship, we know there are NGO scholarship, regional scholarship, merit based, need based, many scholarship. हर किसी बच्चे को GKS में जाना है जो कि practically possible नहीं है. So that's why we came in picture, and then we are right now in tie with 50 plus scholarship providers. So we will shortlist your profile. अगर आपके 55 परसेंटेज है, आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही है, we will identify that, we will apply in that scholarship. So by this way, guys, we will help you with multiple scholarship, and then we will make sure you guys get a very good scholarship. So now talking about the process, we will do that. But yeah, before that, I would like to have a brief understanding about the other countries also, guys. क्योंकि आपकी कंट्री में, आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये ओपिनियन होगा कि आप साउथ कोरिया क्यों जा रहे हैं, अगर आप बाहर ही जा रहे हैं तो यूएसए क्यों नहीं जाते हैं, आप यूके क्यों नहीं जा रहे हैं, आप इंडिया में ही क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहे हैं। एक ब्रीफ छोटा सा अपन अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। ओनली रीजन राइट नाउ यू ऑल आर चूजिंग साउथ कोरिया, इट इज वेरी अफोर्डेबल, गाइज। जितना इन्वेस्टमेंट आप इंडिया में करने वाले हो, अगर आप ट्यूशन फीस की बात करें, इंडिया में भी आपको पता है अच्छी यूनिवर्सिटीज में इट विल बी बिटवीन 70K to 5 लाख, 2 लाख 4 लाख के आसपास होती है। सेम सेमेस्टर फीस, सेम ट्यूशन फी विल बी इन साउथ कोरिया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है साउथ कोरिया जाने के लिए। यूके यूएसए यू कैन ड्रीम अबाउट, बट यू नीड अ बजट ऑफ 20-25 लाख फॉर योर ट्यूशन फी। लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है यूएसए यूके में, दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग साउथ कोरिया। कंपैरेटिवली इंडिया के सिमिलर ही है। पार्ट टाइम जॉब, यू गाइज नो अबाउट द इंडियन मार्केट, यहाँ पर फुल टाइम में जॉब ऑप्शंस उतने अवेलेबल नहीं है, सो पार्ट टाइम इज वेरी डिफिकल्ट। यूएसए यूके में मे बी यू कैन अर्न हायर इन द पार्ट टाइम जॉब, बट उतना ही आपका वहां पे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, 50, 60, 90K तक आपके एक्सपेंस हो जाएंगे। तो यू कैन गेट ए गुड डिसेंट पार्ट टाइम जॉब इन साउथ कोरिया। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको PSW वहां पे मिल जाएगा साउथ कोरिया में इजीली। अभी पोस्ट स्टडी वर्किंग वीजा मिल रहा है। यूएसए यूके में आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो दैट इज द रीजन, राइट। इंडिया से अगर अपन कंपेयर करेंगे, या एनीवन आस्किंग एनीथिंग? ओके, नो वरीज। या सो इफ वी कंपेयर इट टू इंडिया, आप इंडिया से अगर एमबीए कर रहे हैं, इंडिया से आप अपना बैचलर कर रहे हैं, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेशर, बट आफ्टर डूइंग दिस फ्रॉम साउथ कोरिया यू विल बी हैविंग एन एक्सपीरियंस। यू कैन ऐड दिस इन योर रेज्यूमे आल्सो, गाइस, राइट। सो अगर आपकी फैमिली में किसी को डाउट्स है कि व्हाई नॉट यूएसए यूके, I would say surely go USA UK if you are that much financially capable. You can spend 50-60 lakh rupees at least. Go USA UK, but still you will face the competition. Still you will face the saturation point because every country has its own time. अच्छा, यहाँ पर कोई है जो जिसके कोई नॉन, जिसका कोई ब्रदर्स हिस्ट्री, कोई भी बाहर पढ़ाई करने के लिए पहले गया हो, या फिर आपने वहाँ से अब्रॉड का एक्सपीरियंस लिया? इज देयर एनीवन जिसको कोई भी रिलेटिव्स आउटसाइड? No one, guys. So Afrin is saying yes, cousin is in Germany. कौन से ईयर में गए थे आफरीन वो जर्मनी में? So my point to ask is that every country have its own time, right? या आपने बताया 3 से 4 साल पहले, ऑब्वियसली जर्मनी ठीक था, तो 3-4 साल पहले वहां पर 22 में अच्छा था। दीक्षित इज मेंशनिंग कनाडा।
दीक्षित आप अपने भाई से पूछ सकते हो कि 2015 2020 में कनाडा में क्या ऑप्शंस थे और अभी कनाडा में क्या ऑप्शंस है। जो लोग 20 से पहले पहले कनाडा चले गए आज वो सेटल है, लेकिन 21-22 में जो लोग जा रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं सेटल। सेम गोज विद द यूएस और यूके। तो माय पॉइंट इज दैट एवरी कंट्री हैव इट्स ओन टाइम। एक टाइम पर कंट्री बूम में होती है, एक टाइम पे ऐसा आता है कंट्री का कि उनको रिक्वायरमेंट रहती है, बट अभी उन कंट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। अभी यूएसए यूके की कंप्लीट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ में, राइट। सो अभी रिक्वायरमेंट कौन से कंट्रीज को है, साउथ कोरिया को है, जापान को है, इन कंट्रीज को आप टारगेट करेंगे। राइट नाउ आपको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा, प्रोसेस इजी रहेगा। कितनी एज वाले बच्चे जा सकते हैं? मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 17 से ऊपर होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी कोई ऐसे लिमिट नहीं है, बट आपका एजुकेशन गैप उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुडंट बी मोर देन 15 ईयर। Perfect, guys. So yeah, let's we discuss about Stand You. So I am very glad, I am very proud to say that okay, we are in this market from last 10 years. We have more than 10-year experience. We are not that consultancy जो 6 महीने पहले, 1 साल पहले या 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी। हमें ये प्रोसेस करते करते आज 10 साल हो चुके हैं। ओके, so then you guys will be dealing, अगर आप process start करते हो तो you guys will be dealing a very professional company, you guys will be dealing a very legally checked company, and then you guys will be having all the details with you. We are having a valuation of more than 200 CR. Till now, in many countries, we have provided more than 5,000 plus admissions. Okay, guys, so you do not need to worry about that. And we have provided more than 180 CR scholarship. Yeah, so what we guys do, so what like हम क्या कर रहे हैं पिछले 10 साल से, we are providing scholarship based admission in multiple countries. We are a platform promoting scholarship based affordable education for the last 10 years. Okay guys, and we are a startup funded by the venture capitalist. हमारी जो valuation है it is more than 2000 CR. हमको बहुत अच्छी funding भी मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से भी and बाकी venture capitalist की तरफ से भी। And then we have approval of many scholarships. अभी तक हमने बच्चों को more than 180 crore तक की scholarship provide करवाई है। Are we registered in Ministry of Commerce and Industry? Yes, we are registered under the Ministry of Commerce and Industry under the Government of India. Let me show you that certificate also, guys. So guys, this is our brochure. I hope you guys have got this. अगर आपको ये brochure नहीं मिला है अपने counselor की तरफ से, you can just ask your counselor to share you the brochure details and everything. This is our certificate of recognition from the certificate from the Department of Industrial Policy and Promotion. You can check. This is to certify that Stand You Data Info Private Limited incorporated as a private limited company from 2016. 22nd August को we will be celebrating our 10 year. Then we have our ISO certificate, ISO management certificate. This is this is given to all those companies जो अपनी certificate अपनी quality maintain करके रखते हैं, right guys? And yeah, we are already in big newspaper articles and we are at everywhere. This is our CIN number or incorporation date. So let's me search a little bit about the Stand You. Why I'm explaining you this, I understand you guys will be in a hurry to understand the process. बट बिफोर टेलिंग यू द प्रोसेस, मैं आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा कि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, उसका क्या बैकग्राउंड है। तो लेट्स वी सर्च स्टैंड यू गाइस ऑन गूगल। You can check, we have good Google reviews, we have our corporate office, M5 software building near Global Circle, and this is our number. We have all the reviews with us. You can check the Instagram channel of Stand You also. This is our website, but before that I would like to mention you this news section. Whenever you guys will be going in this news section, you will be finding that okay, lots of newspaper articles have written things on us, right guys? You can check, okay, the PR Newswire, the Wire have written article on us, the Times of India have written article on us that Stand You is facilitating fully funded scholarship based admission for higher education. PRN also have written article on us. Your Story have also written, the Print have written. Then if you go through our Instagram channel, you will be finding we have sent it lots of students from the different cities. We have sent it these students for the different courses. These students are studying there.
We are also operating for the Japan and many other countries, guys. So you can check. We have sent it many students. Let me show you some of the videos of students who is already there, who got their acceptance letter and everything. Okay, guys, we have this Manjeet from the Assam. I hope you will be able to hear. Hello everyone, myself Manjit Kolita. I got admission letter from Jeonbuk National University, South Korea. I got admission and I also got 90%. Yeah, Manjeet got the 90% scholarship to study there in South Korea. Then we have Kanan. Kanan also got their acceptance letter. Hi everyone, my name is Kanan Gupta and I'm from Bilaspur, Himachal Pradesh. I have some really interesting news to share with you all guys. That is, I have got acceptance at Inha University in South Korea, that too with 60% of scholarship. I would like to thank Stanley and Company for making. We have many students. We have sent it for the different courses, guys. So whenever you will scroll this Instagram channel, you will be finding. Then we have Jia. Jia is from the Gujarat. Hello everyone, Zia this side, and today I have some exciting news to share with you all because I have been selected for my bachelor's in Global IT Tourism, Seoul National University, Seoul Tech branch, and my visa has also granted through StandU. Honestly, this would. So if you want to check a student from your city, that okay, you can ask your counselor. He or she will share you the name of students gone through your city, or you can just check the Instagram and YouTube channel. You will be finding a lots of students. We have students like Sakshi Rani. Hi everyone, this is Sakshi this side and I have some exciting news to share. I've got accepted in EVA Women's University for my MBA degree and I've also got my visa granted, and it was all thanks to StandU from helping me from the beginning, be it application process or applying for scholarships, getting a visa. They've helped me through it all, and it was. So you can check all these details and you can ask your counselor for the all the links of YouTube, Instagram, and media articles. Now let's me move forward with the further process. But okay, why you guys need to choose StandU? Many universities are there, views like Seoul is already there, Sejong is there, SKKU is a very good university, then Hanyang is good, Kyungsung is there, Bangkok is there. Many top universities are there offering all those courses. Yes, guys. So just at last stage, I would like to explain you that why you should choose StandU. आप में से कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम अपने खुद से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, हम कि हमको किसी की हेल्प नहीं चाहिए. There might be some student who is thinking like that, or there might be some student who is in touch with the other consultancies for the complete process. Yeah, Tanuj asked 100% scholarship मिलती है 60 या 90 तक. Tanuj, let me explain you this. Scholarship criteria solely depend on your academics, your IELTS, and everything. What we promise, yeah. Let me also explain you guys. So we were explaining you these things. Money back to service guarantee contract. So इस कॉन्ट्रैक्ट में हम यही चीज मेंशन करते हैं. दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट ओके गाइस, यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप. आपकी स्कॉलरशिप हो सकता है आपको 80% मिले, आपको 90 मिले, आपको 70 मिले, बट वी विल मेक श्योर यू गाइस विल बी गेटिंग द स्कॉलरशिप. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, राइट? बहुत सारे लोग होते हैं, अराउंड आउट ऑफ 10 एप्लीकेशन 3 to 4 स्टूडेंट्स इजीली गेट 100% स्कॉलरशिप. अगर आपको 100 नहीं मिल रही है तो यू विल बी शॉर्टली एलिजिबल फॉर द अदर टॉप स्कॉलरशिप अराउंड 80, 90 और 100% तक. Then second point is that we provide you admission to the multiple top universities, guys. Guys, किसी ने वुसोंग यूनिवर्सिटी का नाम सुना है यहाँ पे? Is there anyone who have heard about the Wusong University? Okay, जानवी आपने कहाँ से सुना है ये नाम? पुष्पेंद्र, पी सिंह, if you can explain me. Okay, why it is pretty famous, Janvi? If you can unmute, you can let me know. आपने कहीं Instagram वगैरह में देखा हो या फिर कहीं पे? Okay, you have heard from the dramas also. But guys, I would like to tell you
अगर कोई भी कंसल्टेंट आपको ये बोलता है कि वो आपका वुसोंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देगा, गाइस मत जाना वुसोंग यूनिवर्सिटी में। वुसोंग से बेटर यूनिवर्सिटीज आपको इंडिया में मिल जाएगी। वुसोंग इज ऑन 1500 रैंकिंग। तो हम क्या करते हैं फिर, हम कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवाते हैं? हम आपका वुसोंग जैसी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाएंगे। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, जो कंसल्टेंसीज जिन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोवाइड करवाते हैं ऑन द टाइप बेसिस। So this is the first difference we guys have. Sorry, second difference. First was the legal contract. Second difference is that we provide you admission in the top South Korean universities. जो universities top 500 में आती है, जो top 300 में, top 200 में आती है वर्ल्ड लेवल पे, हम उन यूनिवर्सिटीज पे वर्क करते हैं। हमारा किसी भी उन यूनिवर्सिटी से टाइप नहीं है जो लो रैंकिंग है या फिर जो हमें बिजनेस देगी। नो, वी डू नॉट डील ऑन दैट बेसिस। आप सोल में एलिजिबल हो, आपका एप्लीकेशन सोल में होगा। आप अगर कोरिया यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो, आपका एप्लीकेशन कोरिया में होगा। आप योनसाई में एलिजिबल हो, आप सेजोंग में हो, आप संकुनवान में हो, आप एवा में हो, आप हेनयांग में हो, आप क्योंसन में हो, आप बैंकॉक में हो, आपको जॉनबुक यूनिवर्सिटी मिल रही है, आपको जेजू यूनिवर्सिटी मिल रही है, आपको चोनांग, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज वी हैव। तो आपकी प्रोफाइलिंग पे बेसिस पे, आपकी प्रोफाइल के, आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पे वी गाइस विल बी डूइंग द एप्लीकेशन। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर आप कहीं भी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो कीप इन माइंड दैट ओके, StandU विल बी हेल्पिंग यू विद योर यूनिवर्सिटी, योर प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। Then we give you guaranteed scholarship up to 100%. Then we help you with the guaranteed exam and interview support. आपको यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन के लिए जाना है, you can go like we can help you with that. We can help you with the IELTS study material also. And most important, we are not in commission based partnership with any university. Yes, we do partnership with scholarship providers. StandU collaborates with 50 plus global scholarship partners and does not accept commission from private universities, guys. So yes, we will provide you unbiased admission guidance. आप जिस यूनिवर्सिटी में डिजर्व करते हो, you will be in that particular university. Okay, guys. So do not worry. We will help you with the better process. Then we have few more points. We will help you with the multiple scholarship applications. Why I mentioned you this? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीकेएस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ काइस्ट पे डिपेंडेंट है, सिर्फ सैमसंग स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट है। हमारा पर्पस, हमारा जो एम है, दैट इज टू हेल्प यू विद द स्कॉलरशिप। चाहे जीकेएस लगे, चाहे सैमसंग लगे, चाहे यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हो, कोई भी हो, it's our responsibility, it is on our legal contract to help you with the multiple scholarship applications. We help you with the subsidized accommodation support also, guys. Whenever you will be going there, you do not need to worry where you will be living. आपको होटल करना रहेगा, आपको बाहर पीजी देखना रहेगा। In 98% scenario, your accommodation will be into the same university campus. So आपके जाने से पहले ही, you all guys will be going in the February intake, and आपके जाने से पहले ही process done हो चुका होगा आपके accommodation booking का। Part-time job and PR assistance, we help you with that. Then we have strong ROI through high rank universities. हम उन्हीं universities में provide करवाते हैं आपको acceptance letter from a reputed high rank university, improve your visa success. Yeah. Okay guys, I would like to tell you one more fact. अभी साउथ कोरिया में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी? किसी को आइडिया है अभी साउथ कोरिया में ओवरऑल कितनी यूनिवर्सिटीज होगी? कोई भी अगर मुझे अनम्यूट करके एक रफ आइडिया बताना चाहे। Yes, Sanjay, just we will be discussing about that thing. Okay, suppose there is situation that okay, South Korea में 250 यूनिवर्सिटीज हैं। क्या आपको 250 यूनिवर्सिटीज के लिए वीजा मिल जाएगा? अगर आप उन 250 यूनिवर्सिटीज में से किसी भी यूनिवर्सिटी में से आपका एक्सेप्टेंस लेटर आता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होता है, क्या आपको उन 250 यूनिवर्सिटीज में से वीजा मिल जाएगा? जस्ट लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड। जिसको लगता है कि अगर 250 यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया, साउथ कोरिया की टॉप 250 यूनिवर्सिटी में किसी में भी मेरे को वीजा मिल जाएगा, तो जस्ट रेज योर हैंड। गाइस, क्यों नहीं मिलेगा आपको वीजा? मिलेगा ना वीजा तो। बट लेट मी टेल यू गाइस, इट इज you guys will not be getting a good visa. क्यों? मैं आपको बता देता हूँ उसका रीजन। आपको कोई भी कंसल्टेंट नहीं बताएगा। आपको वीजा सिर्फ 69 यूनिवर्सिटीज में ही मिलेगा।
साउथ कोरियन जो एम्बेसी है, जो कोरियन और इंडियन एम्बेसी की जो डील है, जो कोरियन एम्बेसी है, उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो ब्लैक लिस्ट में है, जो ब्लॉक में है कोरियन एम्बेसी की तरफ से। अगर आप उन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़, जो 69 लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उसके बाहर से किसी भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर लेकर आते हो, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुका होगा, बट आपका वीज़ा इनिशियली ही रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्टेड हैं, राइट? एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो हमारी टीम के पास है, हमें पता है कौन सी वो 69 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। हम आपका कभी भी उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करेंगे जिनको वैल्यू नहीं है साउथ कोरियन एम्बेसी के अंदर ही। Okay guys, so this is a very research we have done. So we were on this point, we will be helping you with expert interview training, चाहे आपका mock interview हो, चाहे preparation हो, and then we have professional documentation support. We have a separate well defined department for documentation के अलग department है, university के लिए, application के लिए, scholarship के लिए अलग है, visa processing के लिए अलग है. So everything will not be done by me. Okay, everything आपका counselor नहीं करेगा. हमारे लिए, हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पूरी प्रोफाइल को हैंडल करते हैं. नाउ एट लास्ट लेट्स वी कम टू द सेक्शन ऑफ द फाइनेंस. स्कॉलरशिप मतलब अभी आपको फिर भी कितना फाइनेंस आपके पास होना चाहिए, या फिर आपका फ्री में हो जाएगा पूरा प्रोसेस. लेट्स वी कम ऑन दिस पॉइंट. But before that, guys, at last I would like to understand one more thing from you. What is your expected budget? या फिर आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंसान साउथ कोरिया में पढ़ाई करने जा रहा है तो कितना आपका बजट लग जाएगा? Guys, let me know what do you think. आपका पास कितना बजट होना चाहिए अगर आप साउथ कोरिया में पढ़ाई करने जा रहे हो? Yearly, I guess 10 lakh rupees. Okay. 20 to 30 lakhs, 15 lakh for whole course, 15 to 18 lakh for whole course. Okay guys, yeah, so let me explain you guys. अगर आप साउथ कोरिया में बिना स्कॉलरशिप के जाते हो, योर इन्वेस्टमेंट विल बी अराउंड 30 to 35 लाख रुपीज. अगर आप पूरा प्रोसेस खुद से करते हो, आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है, आप फुल्ली अपने ऊपर डिपेंडेंट होके जाते हो, आपकी फीस का बजट मिला के, आपके अकोमोडेशन, रहना, खर्चा सब कुछ मिला के आपका बजट लगेगा 30 to 35 लाख. But whenever StandU comes in picture, we help you with the complete scholarship, with the up to 100% scholarship, and we guys will be making sure that okay, आपका पूरा process, पूरा master's bachelor degree can be done under 10 lakh rupees or even under 8 lakh or 7 lakh rupees also. जो खर्चा आपका 30-35 लाख का होता है, we will be doing all those process, all those things in just with including your fees and everything under say 8 लाख रुपीज ऑल्सो. मतलब 6 से 8 लाख रुपए के अंदर अंदर. इनिशियली आपको इतना भी नहीं चाहिए. इनिशियली इफ यू गाइस हैव 4 to 5 लाख रुपीज, यू आर गुड टू गो. रेस्ट थिंग्स यू कैन मैनेज विद द पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस एंड एवरीथिंग. Aryan, you cannot go. I guess this is time when you should study. Right now you shouldn't do this thing. If you haven't completed your 11th now, then there is no sense of joining this session. So guys, let me again explain you. If you are currently in 12th, आप eligible हो. अगर आपने 12th कर लिया फिर भी आप eligible हो. आपने अगर bachelor masters कर लिया फिर भी you are eligible हो. But if you guys are studying below these classes, अगर अभी आप 9th में हैं, 10th में, 11th में हैं, there is no sense of joining this session. You can just leave right now. But yeah, let me explain you the fees structure, guys. How StandU process works, हम किस तरीके से आपका एंड टू एंड प्रोसेस करने वाले हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका क्या रियल में यूज होने वाला है, एंड कितना इन्वेस्टमेंट आपको कब कब कौन से स्टेज पे करना रहेगा, और उसके क्या प्रूफ्स रहेंगे. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ऐसा नहीं होता है कि इफ यू वांट टू गो टू द एनी यूनिवर्सिटी आपको एप्लीकेशन करना है डायरेक्टली. नहीं, एप्लीकेशन से पहले आपकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए. आपकी प्रोफाइलिंग में एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होना चाहिए. एंड गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर theme of this complete investment. It will be completely transparent. It will be completely on milestone based.
आपका जो भी ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये जब तक आपका प्रीवियस माइलस्टोन, प्रीवियस वर्क नहीं हो जाएगा, तब तक यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग एंड नो हिडन चार्जेस गाइस। आपको इसके अलावा एक्सटेंडियो को एक भी रुपया नहीं देना है। हाउ, लेट मी एक्सप्लेन यू। जो सबसे पहला आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा, जो सबसे पहले जब आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे, whenever you guys want to start these things, first will be 22,000. Yes Sanjay, we are just discussing that point. इस 332 एक्सप्लेन करने के बाद में आई विल बी एक्सप्लेनिंग द यूनिवर्सिटी पार्ट आल्सो. So first will be your registration with this Tendu team. First will be your our documentation expert will be assigned on your profile, and that expert will be helping you with complete end-to-end admission process or all those things, like all the documentation process में वो आपका expert help करेगा. We will be signing a legal contract, as I already mentioned you. This is the legal contract we sign that okay. आप जितना भी प्रोसेस कर रहे हो that will be completely legalized. So first installment is 22,000 you need to pay when you want to start your process, when you want to register with the Stendu team. So you get your documentation expert. That expert will be assigned, and that expert will be helping you with SOP, LOR, all the certificates, all the kind of रेज्यूमे, सीवी, या फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट एरर है, बर्थ सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मैनी डॉक्यूमेंटेशन. हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोफाइलिंग होगा. वही डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट आपके अगली 35-40 दिन आपकी पूरी प्रोफाइलिंग करने के बाद में आपकी प्रोफाइल को तैयार करके वही डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट आपके लिए बेस्ट कोर्सेज निकाल के देगा. वही एक्सपर्ट आपके लिए पूरी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग भी करेगा. ठीक है. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपके सारा प्रोसेस, आपकी प्रोफाइल तैयार होने तक का पूरा प्रोसेस, प्रोफाइल रेडी होने तक का. एंड या वी आल्सो प्रोवाइड यू कॉम्प्लीमेंट्री IELTS स्टडी मटेरियल एट दिस स्टेज. वी विल शेयर यू द प्रीमियम IELTS स्टडी मटेरियल आल्सो, जिसकी वजह से आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाओगे. Now once your profiling is done, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट तैयार है. Now we are ready for the application. Then you guys need to pay the installment, second installment 90,000 rupees. Why this 90,000 we are charging? अब इस 90,000 का क्या यूज होगा? This 90,000 will be used as your university application fee in at least 4 to 5 universities. At the same time, we apply for 4 to 5 universities, so there is higher chances of getting the acceptance letter. हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी एक एप्लीकेशन फीस होती है. इट विल बी अराउंड 10 to 12K or 8K in few universities. That will be used. And then we will also do a process of document apostille, guys. What is document apostille? Let me explain you this thing, guys. Okay, suppose there is Omkar. Omkar is there. Like I may know Omkar, but Korean universities को नहीं पता कि Omkar कौन है. कोरियन यूनिवर्सिटीज को नहीं पता कि ओमकार का बैकग्राउंड क्या है, उनका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ है. तो उसके लिए क्या होगा, ओमकार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपन ने तैयार करे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे. फ्रॉम वेयर इट विल बी वेरीफाइड, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिल्ली में जो ऑफिस है वहां से ही वेरीफाई होंगे. तो ओमकार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारी टीम ने प्रिपेयर करे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कुरियर होंगे दिल्ली में. वहां पे वेरीफाई होने के बाद में उन पे स्टाम्प लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिल्ली का, भारत सरकार का स्टाम्प सील होने के बाद में ही अपन को पूरे डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं इनके रिमेनिंग प्रोसेस के लिए. ओके, so that process itself cost 1,000 to 1,500 for per page. इतने सारे डॉक्यूमेंट में पर पेज के इतने चार्जेस लगते हैं. तो डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल चार्जेस इसमें इंक्लूड है, इसमें यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फीस के चार्जेस इंक्लूडेड है. आफ्टर दैट आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा. We have applied in 4 to 5 universities. We will wait for next 20 to 25 days. At this stage, if you guys do not get any acceptance letter, आपने जो भी 2 इंस्टॉलमेंट पे करा है, I'm again telling you, this is the first refund policy. At this stage, if you guys do not get any acceptance letter, जो भी 2 installment आपने पे करा है, it will be completely refunded to you as it is. You guys do not need to invest anything else. We are liable. We failed to provide you acceptance letter, so we will refund you. But that is just 1% scenario. Right now, we have 99% of success rate. Then once you guys get acceptance letter, you got verified with all those things. आपने verify कर लिया acceptance letter उनके नंबर के थ्रू, सारी चीजों के थ्रू. You got your mail itself. Then you guys need to move forward with the third installment. Third installment is very important. Why it is important? Let me explain you. जो थर्ड इंस्टॉलमेंट आपका रहने वाला है, दैट विल बी यूज्ड फॉर द यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट स्कॉलरशिप प्रोसेसिंग फीस. यूनिवर्सिटी की जो बाकी एनरोलमेंट होगा उसके साथ में स्कॉलरशिप प्रोसेसिंग. व्हाट इज दिस स्कॉलरशिप प्रोसेसिंग? स्कॉलरशिप मतलब तो सब कुछ फ्री होता है ना, तो ये प्रोसेसिंग फीस किस चीज के लिए? आप उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो उस बात को चेक करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी वहां पर जाएंगे, स्कॉलरशिप अथॉरिटीज के पास में आपकी प्रोफाइल जाएगी. हर स्कॉलरशिप हम एटलीस्ट 8 से 10 स्कॉलरशिप में एक बच्चे के लिए ट्राई करते हैं. तो आपके ये 120,000 यूज होगा आपके पूरे अगेन वापस जो भी पूरा स्कॉलरशिप के लिए प्रोसेस होता है. अगर कुछ इंटरव्यू होता है तो वो अलग से रहेगा, राइट?
तो ये पूरा 120 आपका यूज होगा उसमें. एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस वन इन्वेस्टिंग 1,20,000? व्हाट विल बी द बेनिफिट? लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस. स्कॉलरशिप कैसे वर्क करती है? 100% स्कॉलरशिप होती है, 90% स्कॉलरशिप होती है. वो कैसे वर्क करेगी? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग. Okay, like, is there anyone who can just unmute and let me like help me with all these tuition fees invoice? Omkar, will you be able to unmute? You are not audible. Am I audible, sir? Yes. So Omkar, can you let me know what is this written here? Tuition invoice. Tuition invoice for the Kyunghee University. Okay. And what is the student name? Verma, Palak Verma. Okay, and she is for Department of International Studies in English track. Okay. Now, what is the tuition fees she got for the one semester? It is in Korean track, like the Korean won, which is around 4 million. 45 लाख 10,000 के अराउंड उनकी फीस आई है कुछ. अब उनको एडमिशन स्कॉलरशिप कितनी मिली है? 100%. 100%. And what is the actual amount of payment? 0. तो अब ये स्कॉलरशिप की आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पर उनको 100% स्कॉलरशिप नहीं मिलता, 80% स्कॉलरशिप मिलता, तो उनको कितना पे करना होता फीस का फर्स्ट सेमेस्टर का? अराउंड 20%, मतलब Minimum like in a range of 5 to 10 won. हाँ, KRW में आप वो पे कर रहे होते हैं. We have another students invoice with us. This is for then we have the same scenario. इसमें उनकी tuition fees थोड़ी ज़्यादा है, but again student got the same amount of scholarship. So guys, आपको worry नहीं करना है. Let me clear you one more thing. आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि मेरी 100% स्कॉलरशिप नहीं लगी तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा. आपका अगर 30%, आपको अगर 70% स्कॉलरशिप भी लगता है तो भी 30% विल बी वेरी अफोर्डेबल. 30%, 20% जो भी रिमेनिंग बचेगा, इट विल बी अफोर्डेबल. इट विल बी जस्ट 1.5 लाख रुपीज ओनली. सो यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट और यू डू नॉट नीड टू वरी दैट मच. सो ये जो 1,20,000 का यूज करके अपन ने पूरा प्रोसेस करा है, जो स्कॉलरशिप मिली है, इट विल बी हेल्पिंग यू इन योर यूनिवर्सिटी. जो ट्यूशन फीस होगा उसके स्कॉलरशिप के ऊपर, एंड द सब्सिडाइज्ड अकोमोडेशन आल्सो. ओके गाइस, सो दिस थर्ड इंस्टॉलमेंट. बट या व्हाट इफ यू गाइस डू नॉट गेट एनी स्कॉलरशिप? अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो एज पर दिस लीगल कॉन्ट्रैक्ट विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ, ऑन बेसिस ऑफ दिस लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपको ये तीनों इंस्टॉलमेंट रिफंड कर दी जाएगी. यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग एल्स. आपको सिर्फ अपना वीजा प्रोसेस करवाना है. यू कैन गो विथ व्हाटएवर फीस यू गॉट. आपको ये तीनों इंस्टॉलमेंट आपको रिफंड हो जाएगी. Once you get your admission done, once you get your scholarship letter also, आपको tuition fees invoice मिल जाए, तभी then you need to pay the last fourth installment of 1 lakh rupees. Why this 1 lakh rupees is getting charged? It is for visa. Your visa process पूरा होगा इसमें आपका इंश्योरेंस होगा, आपका ट्रेवल इंश्योरेंस होगा, वापस से डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होंगे, so that okay your accommodation can be booked there. आपका ट्रांसलेशन रहेगा, एंड हमारी टीम ने जो भी आपके लिए मेहनत करी है उसकी कुछ सर्विस फीस भी आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी. सो बाय दिस वे आपका पूरा प्रोसेस 3,32,000 के आसपास का रहेगा. ओके गाइस, तो इस तरीके से आप ये पूरा प्रोसेस करोगे. अब उसके अलावा क्या खर्चा रहेगा? मैंने आपको बताया था कि आपका ओवरऑल बजट तो आपके पास 6-7 लाख का होना चाहिए, या फिर इनिशियली 4-5 लाख का होना चाहिए. तो बाकी खर्चा कहाँ पर होगा? दो जगह पे आपका और इन्वेस्टमेंट रहेगा. फर्स्ट विल बी ऑन योर रिमेनिंग ट्यूशन फी एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. सेकंड विल बी ऑन योर अकोमोडेशन. अकोमोडेशन मतलब कैसे रहेगा? आपने अगर अपने एक सेमेस्टर का अकोमोडेशन 50K में आपको मिला है, आपने एक बार में 50K में यहीं पे कर दिया, तो यू डोंट नीड टू पे एवरी मंथ. इफ यू बुक्ड योर अकोमोडेशन फॉर 1 ईयर, देन यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग. आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा जितने भी आप पैकेज लोगे उसी का. एंड व्हाट इज द टर्म्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? लेट मी एक्सप्लेन यू. We are liable to if we in case of failure to get an acceptance letter from university, Stanley will refund the registration in university application fee subjected to terms and condition of the agreement, as we already mentioned. If we fail to provide you scholarship, we will also refund you.
We will help you with the clearing the entrance exam and interview required. Then university enrollment and scholarship processing fees only payable after getting the acceptance letter, as I already mentioned you all those things. But guys, let me also explain you one important thing. Someone asked me about the show money. Let me come on that point also. आपको जब वीजा प्रोसेस रहेगा, जब आपका वीजा प्रोसेस हो रहा होगा, at that time your father, your sponsor, who is your sponsor, they need to show a bank balance, like bank स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ. आप लोग सब फरवरी में जाने वाले हो अगर आप अभी स्टार्ट करते हो टाइमली. ओके, सो देन आपको बैंक स्टेटमेंट जो दिखाना है वो जनवरी के अंदर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा. उसमें आपके पापा का, आपके जो गार्जियन है उनका उस टाइम का करंट मंथ का लास्ट महीने का होल्डिंग शुड बी मोर देन 11-12 लाख रुपीस होना चाहिए. दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द वीजा प्रोसेस गाइस. ओके, so let me explain you some more points. Korean universities have a small application window of 3 to 15 days. Is there anyone who wants to go in Seoul University? कोई है जो सोल यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है? You can raise your hand. Okay. Dhruva is there, Piyush is there, Omkar is there, Anushka is there, Janvi is there. Anyone know कि सोल यूनिवर्सिटी कब ओपन हो रही है? फेब्रुअरी इनटेक में एप्लीकेशन के लिए सोल यूनिवर्सिटी कब ओपन हो रही है? किसी को आइडिया है? कि मतलब रफ आइडिया भी आप बता दीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, कि 15 दिन में होगी या फिर 20 दिन में होगी. इस जानवी 6 to 9 जुलाई, मतलब आज अभी सोल यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन चल रहा है. देयर इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज कि अभी अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो, आपका 20-25 दिन डॉक्यूमेंटेशन में लगेगा, तो आप सोल यूनिवर्सिटी मिस कर चुके हो. सारे स्टूडेंट सोल यूनिवर्सिटी मिस कर चुके हो, टॉप यूनिवर्सिटीज अभी. लेकिन हाँ, अगर आप अभी स्टार्ट करते हो, अभी अगर अपन प्री इनरोलमेंट भी कर देते हैं साथ में, तो देयर इज स्टिल चांसेस कि आपको सोल यूनिवर्सिटीज मिल जाएगा. बट गाइज अभी वो डिले मत करिए आप, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन विंडो होती है वो 3 से 5 डेज की ही होती है. 3 से 15 दिन की एप्लीकेशन विंडो होती है. अभी सोल यूनिवर्सिटी के ओपन होने का मतलब है सारी यूनिवर्सिटीज की टाइमलाइन सेट हो चुकी है. अगले 30 से 35 दिन के अंदर सारी यूनिवर्सिटी अपनी एप्लीकेशन विंडो ओपन कर देगी फरवरी इनटेक के लिए. सो इफ यू गाइस आर टारगेटिंग फरवरी इनटेक विद टॉप यूनिवर्सिटी इन स्कॉलरशिप, स्टार्ट विद इन दिस वीक ओनली. आपको अपना डिसीजन इसी वीक में फाइनलाइज करना है, क्योंकि अपने पास एप्लीकेशन के लिए उतना टाइम नहीं रहेगा. एंड देन फिजिकल वेरिफिकेशन भी चाहिए होता है, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होता है, उसमें 15-20 दिन लगते हैं. मोर देन 10 फॉर्मेलिटीज अपने को करनी होती है. कभी ट्रांसलेशन होता है, कभी नोटराइजेशन होता है, कभी अपोस्टाइल रहेगा. नंबर ऑफ एप्लीकेशन हर साल बढ़ रहे हैं, तो वी कैन नॉट डिले दैट मच. ठीक है, and we will help you to target top 50 universities of South Korea which is equivalent or better than IITs IIM की जो ranking है. We will help you with better universities than that. Okay guys, so this was all from my side. Then now let me take all your queries, or let me answer all your doubts. Now let me take your queries from the chat box. Yes, if anyone want to unmute and ask anything, you can do that. Yeah, there were one student, Janvi or Sanjay. Sanjay, you can unmute also if you are still there. Okay, I guess. No. Anyone have any queries, guys? Yes, Piyush, you can unmute. सर, जो ये फाइनेंस है और मार्केट मैनेजमेंट है, तो इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होगी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए साउथ कोरिया में? ठीक है, अगर आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो या मैनेजमेंट की बात कर रहे हो या फाइनेंस की बात कर रहे हो, तो ये वो डिपार्टमेंट है जो होता है हर कंपनी के अंदर होता है. अगर वहां पर साउथ कोरिया में कंपनीज हैं, तो ये डिपार्टमेंट भी कोई ना कोई देख रहा होगा, राइट? सैमसंग, अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सैमसंग जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, किस ब्रांड, कौन सी कैटेगरी में आती है सैमसंग कंपनी? सर, ऑटोमोबाइल और टेक. ऑटोमोबाइल और टेक. बट क्या आपको लगता है उसमें फाइनेंस टीम में जॉब नहीं कर रहे होंगे लोग? सर, कर रहे होंगे, है ना. मार्केटिंग तो आईटी कंपनी को भी चाहिए. यस सर. मैनेजमेंट ऑपरेशन तो उसमें भी कोई ना कोई कर रहा होगा. यस सर. तो ये जो डिपार्टमेंट है, इसमें ये जॉब ऑप्शंस कभी कम नहीं होने वाला. और अभी तो अपने को सिर्फ 4-5 कंपनीज के नाम पता है. ऐसा नहीं है कि 5 ही कंपनीज है, मल्टीपल स्टार्टअप्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं.
बहुत सारे ऑटोमोबाइल और अभी वहाँ पे नए स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारी कार कंपनीज स्टार्ट हो रही है। तो आपको मान लिया आपको सैमसंग में ऑप्शन नहीं मिला, आपको अदर यूनिवर्सिटी, आपको अदर कंपनीज में ऑप्शंस मिल जाएगा। तो इस मार्केट में बहुत जॉब है अभी, इंटरनेशनल ट्रेड अभी साउथ कोरिया का बहुत अच्छा है। तो यू विल बी गेटिंग गुड जॉब ऑप्शंस, यू डू नॉट नीड टू वरी इफ यू आर ए स्टूडेंट फ्रॉम द बिजनेस फील्ड, यू विल बी गेटिंग गुड जॉब ऑप्शंस देयर। ओके सर। Uh, सर कोई लैंग्वेज टेस्ट होता है क्या, जैसे इंग्लिश you लैंग्वेज? just need to give the IELTS examination। बिल्कुल क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया इज नॉट एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अपन यूएस यूके की तरह नहीं है, तो साउथ कोरिया की नजरों में अपन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है। तो दे वांट कि जो बच्चा आ रहा है, जो पीयूष आ रहा है, जो ओमकार आ रहा है, उनको इंग्लिश आती है, तभी तो आप वहां जाकर पढ़ पाओगे। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू गिव IELTS एग्जामिनेशन। रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम है, विद मिनिमम 5.5 or 6 you can get good university। Yeah, Janvi is asking, can you tell us SNU is going to open portal again for September intake for next year? Obviously, Janvi, September intake के लिए भी open होंगे, वो भी अभी इसी दिसंबर के आसपास open हो जाएंगे। But right now target Yonsei University। I wouldn't suggest, अगर आपका थोड़ा अभी आपने लास्ट academic क्लियर करा है, क्योंकि अगले साल सितंबर तक वेट करने के बाद में भी SNU मिलेगा, नो गारंटी जानवी। आई एम फ्रेंकली टेलिंग यू, योनसाई मिल सकता है, कोरिया मिल सकता है, SNU मिलेगा ही मिलेगा, नो गारंटी। तो वेट करना सेंस नहीं बनाता है। राइट नाउ स्टार्ट प्रोसेस फॉर योनसाई, सैमसंग, SKK यूनिवर्सिटी, एंड यू विल बी गेटिंग बेटर ऑप्शंस। सर मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अभी जैसे लाइक मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो अभी तक उसकी मार्कशीट वगैरह कंप्लीटली मिली नहीं, क्योंकि अभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स बाकी है। तो सर उसमें थोड़ा प्रोसेस फाइनल लगेगा। अपडेट कब तक मिल जाएगा, आप मुझे बताइए। अगर अपन कितना टाइम तक के दिस टाइम, मंथ, मे बी दिस मंथ एंड कोई इशू नहीं है। देखो अभी क्या होता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अपना जो पूरी प्रोफाइलिंग का टाइम लगेगा 20-25 दिन का लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि, मुझे भी पता है कि आपको अगर 20 डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं या आपको हमें 20 डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आप आज ही हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे। पासपोर्ट का एक अलग प्रोसेस होता है, आपने आइल्स का अलग प्रोसेस होता है। तो राइट नाउ क्या रहेगा ना, जो डॉक्यूमेंट्स आपके ज़्यादा टाइम ले रहे होंगे, उनमें यूनिवर्सिटी कॉलेज से हमारी टीम भी कनेक्ट करके बात कर सकती है। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई भी अगर अभी अपने फाइनल ईयर में है या फिर लास्ट एकेडमिक्स में एग्जाम दे रहा है, वी डू नॉट नीड फाइनल मार्कशीट। आपका फाइनल रिजल्ट नहीं चाहिए होता है, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं चाहिए हमें। आपके लास्ट एकेडमिक के बेसिस पे यूनिवर्सिटी एक एक्सपेक्टेड मार्कशीट बना के देती है, टेंटेटिव मार्कशीट बना के दे देती है, उसके बेसिस पे अपन एप्लीकेशन प्रोसेस कर देते हैं। अभी इस सितंबर इनटेक में जितने भी बच्चे हमारे थ्रू जा रहे हैं, अभी जो 2 महीने के अंदर जाएंगे, सारे बच्चों ने अपने 12th खत्म होने से पहले प्रोसेस स्टार्ट करा था। उन्होंने बोर्ड एग्जाम से पहले प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था। उनके हाफ ईयरलीज के बेसिस पे, उनकी टेंटेटिव मार्कशीट के बेसिस पे प्रोसेस हुआ है। नाउ दे आर गोइंग इन द सितंबर। उनका बोर्ड का रिजल्ट तो बहुत बाद में आया है। ओके जानवी, तो सेम विल बी हैपनिंग विद यू। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या बनाने हैं, कब कैसे बनेगा, दैट्स ऑन अस, दैट्स आवर डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट रिस्पांसिबिलिटी। बस आपका माइंडसेट। हाँ जी सर, LOR और ट्रांसक्रिप्ट भी जरूरी है क्या? LOR एंड ट्रांसक्रिप्ट बिल्कुल जरूरी रहता है, रिक्वायर्ड है। ओके। बट हर यूनिवर्सिटी के देखो 15 to 18 डॉक्यूमेंट्स तो कंपलसरी होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटी कुछ चीज स्किप कर देती है। तो उस बेसिस पे जब अपन यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, तो वी विल बी फाइनलाइजिंग द थिंग कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। ये सोमकार सर एक क्वेश्चन था। अभी मैं 12th चालू है, तो मुझे फरवरी के लिए जाना पड़ेगा कि सितंबर के लिए? आप फरवरी में तो नहीं जाओगे, आप सितंबर में जाओगे, क्योंकि आप फरवरी में बोर्ड एग्जाम दोगे, मार्च अप्रैल तक आपका रिजल्ट आएगा, तो सितंबर इनटेक में जाओगे। लेकिन क्या आप क्या कर सकते हो, अभी क्या होता है ना, एक ऑप्शन होता है, जितने भी बच्चे अभी 12th में हैं उनको भी मैं एक और चीज बता देता हूँ, अगर आप पेरेंट्स के साथ में भी हैं। क्या होता है ना, साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें आप 2 इनटेक के ऑप्शन साथ में ले सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि अभी जो 12th के स्टूडेंट्स है, अभी प्रोसेस तो फरवरी इनटेक का चल रहा है, लेकिन आप फरवरी इनटेक के प्रोसेस के साथ साथ अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो सितंबर इनटेक के लिए। तो अभी अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे, बेनिफिट ये रहेगा कि आपके रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, आपके लास्ट एकेडमिक्स के बेसिस पे आपका नाम वहां चला जाएगा, आपका प्री एनरोलमेंट हो चुका होगा। एप्लीकेशन जब आपका अगले इनटेक के लिए दिसंबर जनवरी तक होगा, तो तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो चुके होंगे, अपन एप्लीकेशन स्टैंड करेंगे। So yes guys, you can discuss this thing with your counselor. All those 12th students जो अभी 12th में हैं, जो सितंबर इनटेक में जाने वाले हैं, आप प्री एनरोलमेंट के बारे में अपने काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं। He will be able to guide you much better. But yes, you can start your September intake process right now with Feb intake only.
ओके Good evening, sir. Good evening, sir. Excuse me, sir. गुड इवनिंग। सर मैंने सोचा था कि वो स्कॉलरशिप की तैयारी हम अभी स्टार्ट करते हैं, लाइक अभी हम 12th क्लास में हैं, तो अभी तैयारी शुरू कर देते स्कॉलरशिप आई के एम नॉट लिए। एबल टू हियर यू, देयर इज लॉट्स ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। आप या तो लिख सकते हैं। ओके सर, आई विल राइट इट। ओके सर, फादर की इनकम कम से कम 11 से 12 लाख होनी चाहिए। नहीं नेहा, इनकम नहीं होनी चाहिए 11 से 12 लाख रुपए। अपने को सिर्फ शो मनी दिखाना है। लास्ट के 2 महीने में पापा के अकाउंट में उतने रुपए अपने को अरेंज करने हैं। बोरो कर सकते हैं पापा उनके ब्रदर से और कहीं से, उनके बिजनेस दोस्त हैं उनसे बोरो करके रखना है। बैंक स्टेटमेंट लगेगा, वीजा हो जाएगा, गिव इट बैक टू समवन फ्रॉम हुम यू हैव बोरोड। सर वीजा बनवाना पड़ेगा या वो खुद ही हमें बना के देंगे? वीजा का प्रोसेस हमारी टीम करेगी। अच्छा सर, ये हाँ, पूछना था कि मतलब हर सर्टिफिकेट में 80% होना जरूरी है या नहीं, कोई कम हो? रिक्वायर्ड नहीं है। हमने 51, 52, 53% के बच्चे भी साउथ कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में भेजे। क्योंसंग यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो देखो, ये जो 80% का क्राइटेरिया जो सेट हुआ है ना, ये जीकेएस ने सेट करा है। ऐसा नहीं है कि 80% चाहिए होते हैं। साउथ कोरिया को 50% से ऊपर चाहिए होते हैं। आप साउथ कोरिया में पढ़ाई कर सकते हो अदर स्कॉलरशिप्स के साथ में। अगर सर ऐसा है तो शायद हो जाएगी, इससे कम तो बिल्कुल हो नहीं होगी। जाएगा। मैं अभी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये बोलना चाहूंगा, इफ यू हैव मोर देन 50% you are eligible to go South Korea. Your scholarship percentage will depend on the things of your IELTS, your overall academic timeline, course, many factors, but you are eligible to go South Korea. Yes, Dhruva. सर कि 20 टाइप के वो डॉक्यूमेंट करने, सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे? देयर इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको आपके काउंसलर शेयर कर देंगे। बेसिक लिस्ट, कुछ अगर स्पेशल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे अलग से एडवांस डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे फाइनलाइज होंगे। ओके सर। सर जो 11 to 12 lakhs का बैंक बैलेंस का दिखाना है वीजा के लिए, वो हाँ जी। थ्रू आउट द 6 months होना नहीं, चाहिए throughout the 6 कंसिस्टेंट? months नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दीज आर द 6 मंथ। अगस्त महीने में अकाउंट में 1 लाख रुपए क्लोज हुआ है, कोई इशू नहीं है। सितंबर में भी 1-2 लाख रुपए है, ठीक है, नो इश्यूज। अक्टूबर में आपने 3-4 लाख रुपए ऐड कर लिए तो 4-5 लाख रुपए हो गए। नवंबर तक जाते जाते वो 6-7 लाख रुपए हो गए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपने दिसंबर तक 6-7 लाख रुपए हैं, तो जनवरी में और 5 लाख रुपए का एडिशन करके अपन छठे महीने में 12 लाख 11 लाख टच करना चाहिए। बट इट शुडंट बी इन दिस वे कि दिसंबर में 1 लाख था और जनवरी में 12 लाख कर दिए। तो वो थोड़ा सा गैप उतना नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूअस आप निकाल ऐड कर सकते हो। हाँ, बट अगर आप लोन ले रहे हो तो लास्ट के 2 दिन में भी आप लोन लेके डाल दोगे, कोई इशू नहीं आएगा। आपने 5 महीने कुछ नहीं रखा है अकाउंट में, छठे महीने अगर आपका लोन अप्रूव हो गया, आपने 15 लाख रुपए डाल दिए, इट्स फाइन। बट अगर आप लोन के थ्रू नहीं जा रहे हो, आप अगर पर्सनल सेविंग के थ्रू अरेंज करके जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप अरेंज करके जा रहे हो तो आपको 6 महीने थोड़ा 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 करके इंक्रीजिंग में डालना रहेगा। ये अनुष्का। सर जैसे 12 लाख हमें ऐसे मतलब होना चाहिए अकाउंट में, तो ऐसे एफडी शो नहीं कर सकते हैं? आप एफडी को लिक्विड करवा सकते हो, क्योंकि वो अपना लिक्विड मनी ही दिखाना रहेगा। एफडी का अगेंस्ट लोन ले लीजिए आप। एफडी आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा और बैंक आपको लोन भी दे देगा। और मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं, सब पीएल लोन या एफडी के बिहाफ पे लोन लेते हैं, गोल्ड के बिहाफ पे लोन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 12 लाख खर्च तो होने नहीं है। आप खुद अंडरस्टैंड कर रहे हो कि 12 लाख करना क्या, आपने को सिर्फ दिखाना है ना। 12 लाख यूज तो होंगे नहीं। 5-6 महीने अकाउंट में रखो, थोड़ा बहुत अपना 10-20 हजार का इंटरेस्ट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। 6 महीने बाद फोरक्लोज करवा लो, लोन खत्म हो जाएगा आपका, पैसे आपने बैंक को वापस दे दिए। यस सर। या ओके। Okay, yeah. Any other students have any doubt? Yes, Piyush. सर पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आप कुछ बता सकते हैं, मतलब पार्ट टाइम के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? पार्ट टाइम जॉब के लिए देखो क्या होता है ना, वहाँ पे सेम यूनिवर्सिटी कैंपस में नोटिस बोर्ड पे बहुत सारी जॉब लगी हुई होती है, एडमिशन टीम के अंदर, लाइब्रेरियन के लिए। और वहाँ पर क्या होता है, जो कोरियन स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो कोरियन जो लोग हैं वहाँ पे, उनको अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3, 4, 5, 10 साल का, उनको इंग्लिश सिखाने का बहुत शौक है। तो इंडियन स्टूडेंट्स कैन हेल्प देम इन टीचिंग एंड यू कैन गेट अ गुड जॉब।
आपको 1-2 घंटे पढ़ाने के भी आपको 5-10 हज़ार रुपए मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। Yeah, Sanjay, you was asking, I have completed MBA in UK. What course can I do, or is it possible? My field is banking and finance. My priority is to get job. If your priority is to get job, go for the global MBA. Nothing is better than global MBA. Finance और accounting students के लिए better रहेगा। Dikshit is saying, can you please answer? स्पीकिंग अच्छी ना हो तो, Sorry, अगर इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी ना हो तो? आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप वहाँ पे पढ़ाई कर सको। अगर इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है तो आप दूसरे वर्क कर सकते हो। आप वहाँ पे एज ए लाइब्रेरियन वर्क कर सकते हो। आप किसी स्टार्टअप में, अगर आपके फील्ड में हो, आप तो हेल्थ इंडस्ट्री में हो, उसमें काम कर सकते हो। अकाउंटिंग की कहीं जॉब कर सकते हो, कहीं टेक्निकल कुछ जॉब कर सकते हो, ऑपरेशन में कर सकते हो। मैनी जॉब ऑप्शंस विल बी देयर। आप सिखा नहीं सको उसमें कोई इशू नहीं है, बट आप खुद सीख सकते हो। इंग्लिश में इतनी अच्छी तो होनी चाहिए क्योंकि आप पढ़ोगे वहाँ पे इंग्लिश में, है ना। तो सर कब तक मतलब हो सकता है? अभी मेरे मतलब बैचलर डिग्री हो गई है, अभी मार्कशीट नहीं आई है बस की। आप प्रोसेस स्टार्ट करिए, काउंसलर से कनेक्ट करिए, फेब्रवरी में आप लोग चले जाओगे। जो बच्चे 12th में हैं अभी वो नहीं जा सकते फेब्रवरी में। जिसका 12th कंप्लीट हो गया, जो बैचलर लास्ट ईयर में है या जो बैचलर हो चुके हैं, दे आर ऑल आर एलिजिबल टू गो इन दिस फेब्रवरी इनटेक। ओके। Dikshit is asking, how is IT sector in South Korea? Dikshit, there is no point to discuss about this क्योंकि आपको खुद को पता है BGMI, PUBG, क्राफ्टन, ये जितने गेमिंग इंडस्ट्री, ई स्पोर्ट सारे साउथ कोरिया से हैं। सारी आईटी में सारी कंपनीज साउथ कोरिया से अभी हैं। मल्टीपल एआई स्टार्टअप्स वहाँ पे हो रहे हैं, रोबोटिक्स एमएल स्टार्टअप्स वहाँ पे हो रहे हैं। तो आईटी सेक्टर मतलब बूम पर है, अभी पीक टाइम है आईटी का साउथ कोरिया में। Okay, guys, so I guess I have cleared all your queries. It was very nice talking to you. And yeah, Dhruva. Is there any special loan criteria? Like, for example, if I take a loan from a bank and I'm showing a bank balance from the same bank's account, is that okay? That is very fine. That is very fine until unless हाँ, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है। अगर आपने लोन लिया है, आप वो अकाउंट दिखा रहे हो, ठीक है, बट दैट कैन बी पीएल। क्योंकि अगर आप एजुकेशन लोन की तरफ देखोगे तो एजुकेशन लोन में इशू ये रहेगा, मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ, देयर इज नो लाइक एजुकेशन लोन आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको यूनिवर्सिटी से कोटेशन मिलेगा। अगर आपको यूनिवर्सिटी से कोटेशन ही 1 लाख रुपए की फीस का मिला है तो फिर वो आपको 1 लाख का ही लोन मिलेगा। तो इफ यू वांट टू अच्छा, शो बैंक बैलेंस, गो फॉर द पीएल या फिर सेविंग या फिर ओपन मार्केट में भी आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा okay, इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा। या okay, thank you. ओके। तो सर ये लोन मतलब जो लेंगे उसका अमाउंट कब तक शो करना होता है? आपको दिखाना रहेगा, जनवरी में दिखाना रहेगा। आप लोन का अमाउंट लेके अक्टूबर नवंबर से रख लेना। तो उसके बाद मतलब वो उनको हमेशा दिखाना रहता है या वापस नहीं रखकर नहीं वापस? नहीं 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 नहीं, जनवरी में आपने दिखाया, आपका प्रोसेस हो गया, वीजा लग गया, अब आपको कुछ नहीं दिखाना 3-4 साल तक। मतलब आपके पूरे कोर्स तक वो वीजा रहेगा आपका। एंड इसके रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग अगर देखो किसी को भी कुछ भी क्वेरीज हो रही है 10-12 लाख के रिगार्डिंग, आई गेस योर फादर विल बी द राइट पर्सन टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। आप डायरेक्टली अपने काउंसलर को अपने पापा से कनेक्ट करवाइए। काउंसलर विल बी एबल टू गाइड देम बेटर कि किस तरीके से ये अरेंजमेंट हो सकता है। Tanuj, you haven't asked anything. If you want to ask, you can do, or else Tanuj and Sheetal also, Sheetal Rani, Para, okay, you can also ask, and then we are just ending the session. यस तनु, सब कुछ हम ही करवाएंगे। आपके एप्लीकेशन से लेके, वीजा प्रोसेस से लेके, आपका स्कॉलरशिप लगवाने से लेके, आपके डॉक्यूमेंट भेजने से लेके, एवरीथिंग विल बी डन बाय आवर टीम। एंड या फ्लाइट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। फ्लाइट आप लोग का ग्रुप बन जाएगा तो आप लोग फ्लाइट अपने हिसाब से बुक कर सकते हो। तो सर मतलब डॉक्यूमेंट हम सारी चीजें प्रोसेस कर देंगे, उसके बाद हमारा सिलेक्शन होगा तभी हम जा सकते हैं ना? हाँ, और सिलेक्शन होगा। अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, उसमें आप बिल्कुल वरी मत करिए। सर अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो इधर, अगर आपके ग्रेजुएशन के फाइनल रिजल्ट अक्टूबर तक आ सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर द फेब्रुअरी इनटेक। अक्टूबर नवंबर तक आ सकते हैं तो एलिजिबल फॉर फेब्रुअरी इनटेक, एल्स देयर इज सितंबर इनटेक। सर रिजल्ट तो आ गया, बस मार्कशीट नहीं आई है अभी।
हाँ तो आप जा सकते हो ना, आपके लिए तो अभी अपन ने बात करी थी, यू कैन इजीली गो। सब कुछ मिला के ओवरऑल आपका 7-8 लाख रुपए तक लास्ट तक जाएगा, एंडिंग तक। इनिशियली तो 5 लाख रुपीज इज फाइन। या तो फिर आप अभी ड्रॉप करके जाइए, अगर आप बैचलर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, आपको अभी जाना है तो फिर आपको ड्रॉप करने का ऑप्शन है, आप आराम से बैचलर वहां से इसी फरवरी इनटेक में स्टार्ट कर सकते हैं। नो सर, कंप्लीट हो गया मेरा बैचलर। Yes, Neha, I know your bachelor is completed. Like I'm asking about, or I'm talking about other students also, जो chat box में और discussion हो रहा है ना उसके रिगार्डिंग। आप तो एलिजिबल हैं, आप वरी मत करिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन था, वो जो आपने बोला था ना 6 से 7 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं, तो वो एक साल के अंदर करना होता है? नहीं, इनिशियली इस प्रोसेस में 3 लाख रुपए लगेंगे, उसके बाद में आपका फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपको एक बार पे करना है, जो बचता है 80,000 1 लाख रुपए। देन आपकी फिर हर सेमेस्टर की जो फीस बचेगी वो आएगा आपका, अलग अलग टाइम पे होगा। Okay guys, so I'm ending this session as of now. अगर फिर भी किसी के कुछ queries रह जाते हैं तो you guys will be getting a feedback form from your counselor. Fill that. Your counselor will reach out to you for the further process guidance. किसी को registration भी करवाना है, do this by this Saturday. There are some discounts going on. At least 10 to 15K का आपको discount offer हो सकता है. And then क्योंकि top university Sky के लिए अभी अपन apply कर रहे हैं, so go for it. It was nice talking to you guys. Bye.